वेलकम टू अनदर 30 days सीरीज़ ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦ 30 day ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪ ਚਾਹਣਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦ ਮੋਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਨ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਦ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ दो चीज़ें हैं ना, दो वर्ड्स बने हैं कंट्रोल प्लस स्टेटमेंट्स। सो दैट्स मीन ए कंट्रोल, फर्स्ट वन इज़ द कंट्रोलिंग और दूसरा दिस कंट्रोलिंग कर दिया वो स्टेटमेंट्स जड़ियाँ कंट्रोलिंग कर दी कि प्रोग्रामिंग दिया। सो इहदा सिंपल तो सीधी डेफिनेशन बनती पई है कि जिहड़ा प्रोग्राम दी एग्जीक्यूशन नू कंट्रोल करन लई ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸੋ 4 ਵਰਡਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਵਨ ਆਫ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਇਨਟੂ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ। अच्छा, डेफिनेशन की है अलाउड डिसीजन मेकिंग इन अ प्रोग्राम, ठीक है। वन एक हो गया डिसीजन मेकिंग वाला मेन इन्हों का, ठीक है। एंड इनेबल अस टू स्पेसिफाई द ऑर्डर, स्पेसिफाई द ऑर्डर, ठीक है। दूजी चीज़ होगी मेरे को कीवर्ड्स इन विच द वेरियस इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। आलो तीसरा, सो 3 वर्ड हो गए। सो डिसीजन मेकिंग आ जी कि स्पेसिफिक आदि ऑर्डर का कि किहड़े ऑर्डर दे विच एग्जीक्यूशन होनी है स्टेटमेंट्स की, ठीक है। सो 3 टाइप्स आ। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक this video into the 3 parts. So the first one is the decision control statements in which we're gonna do ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ if, then if else and nested if, ठीक है जी। so 3 parts are decision control statements are, then iterative statements are, and then ਸਾਡੇ ਕੋਲ jumping statements are। so 3 parts ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, shorts ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਿ it would be easy for you guys to review and study on this topic। so let's see what is a ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਕੈਪਚੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫॉर ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਲੇਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ और आउटपुट ले आप यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स। ओके, सो मेन एग्जीक्यूशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर तुम ये नहीं यूज़ करोगे तो दैन यू मस्ट हैव टू पुट std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विद एवरी सी इन और सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, हुण इहदे विच की आ सिंपल इफ कंडीशन आ। सो ओनली आपां इत्थे की करदे आ एक कंडीशन नूं आपां देखदे हैं, चेक करदे आ, ठीक है। कंडीशन मैच कर गई तो दैन अपन वैल्यू प्रिंट कर देना। वी विल नेवर गो फॉर द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट इंटीगर की है डाटा टाइप आप कर चुके हैं। एज इज़ ए वेरीएबल। सी आउट सब तो पहला सी आउट लिखे आप की है जो ये आ गया एवरीथिंग इज रिटन बिटवीन द इन्वर्टेड कॉमर्स फॉलोड बाय सी आउट एंड दिस एरर ब्रैकेट्स। सो दैट्स मीन यू गोना प्रिंट इट एज ए टेक्स्ट। सो ये एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो गया एंटर योर एज, ठीक है। सो यूजर्स तो वैल्यू आप लै ली C++ की लेने आप सिन। सो एज दे विच की है मेरे को आप इतने यूजर ने वैल्यू पुट की, दिस वैल्यू इज इनपुट बाय द यूजर, ठीक है। हुण अगे इफ कंडीशन लगाती आप ये, ठीक है। इफ लगाने का सिंपल तरीका की है, सिंटैक्स की है। सब तो पहला इफ लिखना, दैन राउंड ब्रैकेट ऑन, दैन ये कंडीशन स्पेसिफाई करनी, राउंड ब्रैकेट ऑफ,
then curly braces on and curly braces off, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਔਰ ਬਲੌਕ ਆਫ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ then you must have to put this one as well, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ठीक है। if you are not putting this one then you don't need to put this one, but ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲੂਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਇਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਫ ਏਜ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ 18 ਤੋਂ ਜਾਂ 18 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਆਹ ਕੋਡ ਆਫ ਬਲੋਕ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਏਜ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ 25, ਸੋ 25 ਕੀ ਆ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ, ਯੈਸ ਮੈਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੂਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਚਲੀ ਸੀ ਆਊਟ, ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਵੋਟ ਐਂਡ ENDL ਫॉर द नेक्स्ट लाइन, then return 0, code is okay, so मेरे को और स्टेटमेंट मेरे को प्रिंट होनी है, ठीक है। दिस वाज अ सिंपल इफ प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा सेकंड जो है टाइप सारे को है इफ एल्स, सो इफ एल्स किया दो कंडीशंस आ, सिंटैक्स किया सिंटैक्स देख लेने। सब तो पहला इफ लिख के सब तो पहला आप एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। उस तो बाद कोड लाइन ऑफ कोड जो भी तुम लिखना, उस तो बाद नहीं तो एल्स, ठीक है, जो कंडीशन हो गई स्पैसीफाई, ठीक है, नहीं तो इनू कहने डिफॉल्ट स्टेटमेंट, मतलब अगर पहला नहीं चलता पाया तो दूसरा चलना। अगर तुसी सी की होगी लास्ट टाइम तो या पिछले टाइम इन द प्रीवियस सेमेस्टर, then you would be very clear with the concept of the try and catch, ट्राई और कैच। ट्राई की होंगे आप कोड जो एग्जीक्यूशन वाला इच पा दें, अगर नहीं चलता फिर कैच वाला चलना चाहिए साडा। सो ये कंडीशन इतने की कंडीशन इफ कंडीशन चला दें, अगर मेरी आ स्टेटमेंट ट्रू हो गई आ कोड चल पा, नहीं तो एल्स वाला। अच्छा हम देखो ये की सेम आ इंट लैके आप कोई नंबर लिया हुआ, ठीक है। दिस इज़ द डिक्लेयर करते पे डिक्लेरेशन where I'm gonna declare the number as an integer data type, then ਆਪਾਂ डिस्प्ले की यूजर ਨੂੰ see out enter नंबर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ यूजर ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, then sin enter ਉਹਦੇ ਐਂਟਰ ਲਈ ਦੇਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 25 ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਲਾਤੀ, ਇਫ ਨੰਬਰ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ रिमाइंडर अगर 0 हैगा आ, सो 25 ਨੂੰ डिवाइड करो पहला 2 ਤੇ 12 दूना 24, 1 रिमाइंडर आ गया। सो आ की है इट्स नॉट इक्वल टू 0, स्टेटमेंट गलत होगी। सो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी चली नहीं हैगी, ठीक है। सो दिस कंडीशन गोइंग टू बी द फॉल्स, दैन बाय डिफॉल्ट गड़ी चलनी है, सो इट मस्ट हैव टू बी दिस वन, ठीक है। सो इतने की चल गया द नंबर इज और आवली आ गई साढ़े को कंडीशन, ठीक है। और ये नोट डाउन किया होना, इतने मैं ब्रेसिस नहीं पाए एंड आई विल पुट द ब्रेसिस लाइक दिस, ओपन करी ब्रेसिस, क्लोज, ओपन एंड क्लोजिंग। अगर तुसी वही चीज़ आ इतने लास्ट टाइम जी दसी सी जे ब्रेसिस पाने तो उन्होंने ऑफ करो, नहीं तो दोनों नहीं पाने हैं, ठीक है। अच्छा हम मोस्ट कॉमन जो तुसी प्रोग्राम करना तो एरर आने एक कि तुसी नाम वगैरह गलत प्रिंट करता, दूसरा हाँ कर्ली ब्रेसिस आना है, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान करना वाइल कोई भी प्रोग्राम तुसी करते हैं। सो नैक्सट वन इज़ अ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ केड़ा हुंदा है साडे को, मतलब आई हैव द मोर देन द 1 or 2 or 3 कंडीशंस, ये तुसी अपने तक लैके जा सकते नहीं लेनी। सो ये मैं 3 कंडीशंस लैके चलूँगा। सब तो पहला इफ दे विच मेरे को कंडीशन आ गई एक, अगर ये मेरी कंडीशन चल गई ठीक है, if it's true then it's well and good, and if it's not then I'm going to use a second condition, else if, else for the second condition and if for the condition number second। फिर ये चल गई, अगर मेरी ये भी नहीं चल रही then what I'm going to do, फिर by default मेरी आ वाली कंडीशन चल पई, this is the default condition, ठीक है। सो हुण इहदे विच की आ मार्क ले लिया, ठीक है। आओ हम इतने तो कॉमन पार्ट तुहानूं पता लगना चाहिए कि आप वैल्यू गैट करते पे फ्रॉम यूजर, ठीक है।
गेट वैल्यू करते पे एंटर यो मार्क्स। सो मार्क्स ये आप वेरीएबल ले लिया, इतने वैल्यू एंटर करवाई, सो प्रिंट हो गई, मार्क्स आप एंटर करवाते 82। ठीक है, नाउ फर्स्ट कंडीशन चली गया। सो दिस वन द फर्स्ट कंडीशन की बात इफ द मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब ज़्यादा मार्क्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 82 ਜਾਂ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 82 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, कि वैल्यू बराबर। अच्छा इफ मार्क्स इज 90, हम फर्स्ट कंडीशन की है मार्क्स 82 है या बराबर है, नो, कंडीशन मेरी दोनों फॉल्स हो गई। हूँ एल्स के अंदर सैकेंड कंडीशन चलाओ, सैकेंड कंडीशन चली। सो मार्क्स इज 75 आ गए ग्रेटर दैन और इक्वल टू द 75। सो 82 एंटर किए थे, अगर 82 एंटर किए थे सो इट शुड बी ग्रेटर दैन 75 और 82 इक्वल टू 75। दो कंडीशन आ, सो ये मतलब दो कंडीशन ज़्यादा आ वाली जा वाली। सो मेरी एक कंडीशन स्पेसिफाई करती भी, दूजी नहीं, बट एक कंडीशन करती भी। सो मेरा एग्जीक्यूशन कोड आया चल पड़ना। सो ग्रेड बी इतने आ गया। ठीक है, सो दिस वन इज योर नेस्टेड इफ। सो नेस्टेड इफ की है एक लेटर की तरह बच गया है एल्स इफ एंड लास्ट वन इज द एल्स, लास्ट एल्स ही आना है, याद रखना है। सो इनू मैं की कहूँगा डिफॉल्ट, अगर मेरी बाय डिफॉल्ट अगर मैं वैल्यू कोई इदा दी ले लेंदा, अगर मेरी आ भी कंडीशन नहीं चलती पी, आ भी नहीं चली, आ भी नहीं चली, सो बाय डिफॉल्ट की है उन्होंने आ वैल्यू प्रिंट करनी ही पैनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आप इतने की है। सो इनू आप एक बार प्रैक्टिकली करके देख लें ऑनलाइन कंपाइलर पर भी कितना चलता पाया। ठीक, जो भी whenever you gonna start learning the programs, the first of all is दो मेथड है। फर्स्ट वन इज यू हैव टू गिव द वैल्यू फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, तुसी आप वैल्यू देनी है एंड जो अपनी वैल्यू तुहाडी दित्ती हो गया, प्रोग्राम चल गया, दैट्स मीन द कोड इज टोटली एरर फ्री, देन यू हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, दैट यू शुड take into consideration while doing the program. It doesn't matter whether you're doing in the PHP, doing it in Java, C or C++, सब तो पहला प्रोग्राम करना कि आप वैल्यू देनी है। ठीक है, उस तो बाद जो ये प्रोग्राम चल गया उस तो बाद फिर सैकेंड प्रोग्राम करना हमेशा यूज़र तो वैल्यू लेनी है। ठीक है, सो यूज़र तो वैल्यू लेनी वाला प्रोग्राम साढ़े को आ गया 35, दैन फिर चलना चाहिए। ठीक है, ओके, एंड सैकेंड प्रोग्राम की सीगा साढ़े को इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, सो इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट आ गया साढ़े को। सो एक ही साढ़े को कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है इन्हें कहने आप। अच्छा ये सी साढ़े को लास्ट वन लास्ट सैकेंड प्रोग्राम से ये लिया आप एक नंबर लिया इनू इतने की करता आप डिक्लेयर। ठीक है, नंबर एंटर करवा लिया। सो ये आप कंडीशन लाती भी जे वो जो रिमाइंडर आ 0 के बराबर हो तो आ कोड चले, इफ इट्स नॉट दैन इट शुड print this one। ठीक है, so let's execute this program। ठीक है, enter the number। okay, I'm going to enter the number 35 ही लेके चलते हैं ताकि पता लगे। सो 35 इस इतने नंबर लिया उन्हें। और अच्छा हुण इहदे विच याद रखना है कि जो सी आउट दे विच आपां विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा लिख दिंदे आ, सो उन्होंने की दिंदा ओहदी वैल्यू फैच करता है। सो इत्थे वैल्यू फैच कर ली 35 एंड इज ऑड और इवन इज इट गोना टेक इट एज ए टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा हुण इस प्रोग्राम नूं जरूरी नहीं आ ही कंडीशन चकनी है। ऑलराइट, फर्स्ट वाले प्रोग्राम की कंडीशन सी साडे को इफ ये आप नंबर लिया। ठीक है, नंबर ही लिया करने। ठीक है, इनू नहीं चेंज। इफ नंबर इज इक्वल टू 18 देन और नंबर इज इक्वल टू 18 और स्टेटमेंट की सी you are eligible for vote। अच्छा ये मैं ज़्यादा कॉम्पलैक्स प्रोग्राम नहीं कर रहा। ठीक है, प्रोग्राम मैं बना रहा बहुत सौखे और ईजी ताकि जोड़ा है बंदा है अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो सौखा हो रही इस चीज़ में करना। ठीक है, याद करने सौखे है कंसैप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट तुहाडे दिमाग च कंसैप्ट बैठना चाहिए। राइट, तो तुहाडे दिमाग च कंसैप्ट नहीं बैठ रहे। ठीक है, फिर प्रॉब्लमैटिक होनी चीज़। सो सब तो पहले कंसैप्ट बैठना चाहिए। हुण इहदे विच मैं एक नंबर ना मैच कर रहा है वैल्यू। ठीक है,
सो लो द फर्स्ट 8 पा देने 18 नंबर पाया इफ नंबर इज इक्वल टू 18 देन यू आर एलिजिबल टू वोट ठीक है और अगर दूसरी कंडीशन से तो प्रोग्राम करना उन्होंने दोनों कंडीशन चला के देखना ठीक है 19 है सो मेरी एग्जीक्यूशन नहीं चल रही आ कंडीशन फॉल्स होगी दैन मेरे को नेक्स्ट आ वाली कंडीशन चल पई ठीक है सो ये मेरे को इफ एंड इफ एल्स आ गया इत्थे तुसी प्ले कर सकते कोडिंग दे नाल राइट यूजर द वैल्यू लैके इनू 0 दूसरा कर लो ठीक है नंबर जिहड़ा सीगा मॉडुलस ऑपरेटर जिहड़ा सीगा आपे इत्थे लगाया हुआ सीगा किहड़ा सीगा ये दिस वन by 2 or is equal to 0 then number is even और इत्थे आना number is odd ठीक है सो इन्हें एग्जीक्यूट करके दे लेने 18 तो नंबर इज even ठीक है सो इत्थे हुण की है दो पार्ट्स विच मैं प्ले कर लिया कोडिंग नूं ठीक है सो ये अगर कोड छोटा करना जरूरी नहीं तुम एज नंबर लेने अच्छा ये आप तां लेने फॉर रैफरेंस ताकि सानू पता लगे आप की लै रहे हैं अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद जिहड़े है एक छोटे अल्फाबेट्स और छोटे वेरिएबल्स ना लै सकते सो दिस वन इज इत्थे सानू तां डिक्लेयर करना जरूरी सी कि जो यूजर ने वैल्यू एंटर करनी उन्हें पता लगे कि यार इंटीगर टाइप वैल्यू ही एंटर करनी है आप ठीक है सो एंटर इन नंबर ठीक है उन्हें पता इंटीगर वैल्यू पर करनी है सो ये की है इतने नंबर की जगह पे ए and there you go A and there you go got it ठीक है so number क्या है 25 so 25 number is odd ठीक है so number is ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ last time number use ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so A ਕੀ है as a text because it is in the inverted commas and ਆ ਸਾਡਾ variable without inverted comma and it's gonna fetch its value ठीक है the next one is ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ nested if ठीक है साडा तीसरा प्रोग्राम हैगा ਉਹਦਾ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट सर ठीक है अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ is greater than or equal to the 90 फिर आ नहीं था 75 नहीं तो फिर सारे को थर्ड कंडीशन आ जाए 50 वाली लेट्स सी सब तो पहले प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर देते हैं सो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 सो ये रेंज सैट की है सो ये आप 60 पर लेने ठीक है सो ये की है जो 50 तो उपर आ ठीक है सो 50 तो उपर आ ये मतलब 64 तक इतने आप एक कंडीशन लिखनी 50 तक मतलब 50 तो 74 तक वैल्यू जी हैगी आ सी दी जानी है और 75 तो इतने 99 तक वैल्यू दी जानी है और 90 तो उपर जी वैल्यू आ वो ए ग्रेड से जानी है ठीक है सो ये कंडीशन सब तो पहला तुहानूं पता होनी चाहिए सो वो लिए एल्गोरिथम्स क्लीयर होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोना डू इन दिस प्रोग्राम्स ठीक है सो इफ आई एम गोना एंटर द 74 then grade is the same and if I'm going to enter the value is 89 then grade is going to be the B and if I'm going to enter the value of the 100 then grade is going to be the A ठीक है अच्छा हुण इस इत्थे जिहड़ा कोड आ इहनूं आपां इदां किदां प्ले कर सकदे हां हुण इह कोड आ मेरे को सिंपल लिखिया होया हुण कोडिंग नाल प्ले करना हाउ आई एम गोना डू दैट ठीक है ये आप पहला वेरीएबल ले लेने ए बी सी 3 वेरीएबल ले ले 3 ही 2 ही लेने चलो 3 ले लेना ठीक है सो 1 2 and 3 ठीक है 3 वेरिएबल ले ले enter value of A enter value of B and enter value of C ठीक है सो ये चेंज करना पैना इतने दिस वन इज A that going to be the B and it's gonna be the definitely the C ठीक है और एक और वेरिएबल ले लेने पा int D is equal to A plus B plus C right so ये समेशन वाला परफॉर्म लगाता ना ये मार्क्स की जगह पर ला देने D ठीक है सो इतने मेरे को गया D right and इतने मेरे को गया
D, राइट। चलो हम इन्होंने एग्जीक्यूट करके दे रहे हैं, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ A 10, ਉਹਦਾ 52, ਉਹਦਾ 63, ठीक है। सो समेशन कितना आ गया ना था करके वैल्यू की है मेरे को आ ग्रेड 1 जड़ी, ठीक है। सो ग्रेड A बन गया वैल्यू C। सो इतने तुसी अलग अलग सबजैक्ट से मार्क्स लेके ਉਹਦੀ परसेंटेज ਕੱਢ के कर सकते हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नेक्स्ट लाइन की लेना ENDL, मूविंग इनटू द नेक्स्ट लाइन ENDL, ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਐਂਟਰ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A, I'm going to write the 10, this is going to be the 20 and it's going to be the 4, then fail, ठीक है। लास्ट वाली स्टेटमेंट चल गई, ठीक है। सो ये है कोड ना प्ले करा, देखो कोड ईजी का बट की ਕੀਤਾ ना सिंपल उन्होंने कोड ना प्ले किया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। So that was 3 types of the control statements, ठीक है। Now अब अगे आप करना है हुण लूप statements, ठीक है। So मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है जी। Stay in touch।